اس کتاب میں مائل خیر آبادی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا ابن بطوطہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس کا سفر نامہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اس کا سفر نامہ پڑھ کر اپنا مقام بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم اس فکر و نظر سے اس کا یہ سفر نامہ پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں تازگی اور ہمارے اسلام میں پختگی آئے گی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر وہ داعیہ ابھرے جو خدا کی توفیق سے ہمیں وہ مقام دلا دے جو مقام اس سفر نامے میں ہمارے ابن بطوطہ کا ہے۔ یہ سفر نامہ اس غرض کے لیے مرتب کیا گیا ہے کہ سفر نامہ مرتب کرتے وقت جو فعال کردار جہاں ملا اسے مرتب نے اپنا ابن بطوطہ تسلیم کر لیا، پھر اس کے واقعات کو اپنے لفظوں میں ڈھال کر اس سفر نامے کا جز بنا دیا، ساتھ ہی مزید دلچسپی اور افادیت کی غرض سے طبع زاد واقعات بھی شامل کر دیے۔ اس طرح سفر نامہ نہایت دلچسپ ہو گیا۔ جنگلی لڑکی۔ ہمارے ابن بطوطہ کے سفر نامے کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار وہ ایک جنگل میں 7 دن بھٹکتا رہا۔ اس پورے ہفتے میں اس نے جنگل میں جو کچھ دیکھا، جس طرح اس نے جنگل میں دن کاٹے اور جس طرح جنگلی جانوروں سے اپنے آپ کو بچایا، وہ سب اس نے خوب پھیلا کر اور مزے لے لے کر لکھا ہے۔ لیکن ہماری نظر میں اس جنگل کا سب سے زیادہ مزیدار اور نصیحت والا واقعہ وہ ہے جو اس نے آخر میں لکھا ہے۔ ہم وہی واقعہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ شیر اور گھڑیال کی زد میں۔ وہ لکھتا ہے، عصر کا وقت تھا، میں نے سوچا نماز پڑھ لینی چاہیے۔ میں پانی کی تلاش میں ایک طرف چلا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ندی مل گئی۔ میں اس ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگا۔ اچانک پانی میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جانور میری طرف آ رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھڑیال تھا، منہ کھولے دھیرے دھیرے میری طرف آ رہا تھا۔ اس خطرے کو اچانک سامنے دیکھ کر اللہ خیر میری زبان سے نکلا اور میں نے جھٹ ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ میں دور جا گرا۔ ٹھیک اس وقت جب میں نے چھلانگ لگائی تھی، شیر کی گرج سنائی دی۔ اب جو دیکھا، ٹھیک اسی جگہ جس جگہ میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا، ایک شیر گھڑیال کے جبڑوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے بچ نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن شیر کے بنائے کچھ نہ بن سکا۔ گھڑیال شیر کو پانی میں گھسیٹ لے گیا اور پھر نہ ابھرا۔ میں سوچنے لگا، یہ کیسے ہو گیا؟ شیر گھڑیال کے منہ میں کس طرح آ پھنسا؟ میری سمجھ میں آیا، میرے آگے پانی میں سے گھڑیال نے مجھے دیکھا اور پیچھے سے شیر نے۔ پھر ٹھیک اس وقت جب گھڑیال منہ کھول کر مجھ پر جھپٹا، شیر نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور ٹھیک اس وقت میں دوسری طرف کود گیا۔ پھر ہوا یہ کہ میں تو گھڑیال سے بچ گیا اور میرے بدلے شیر گھڑیال کے منہ میں جا گرا۔ میں تھوڑی دیر تک ہکا بکا سا رہا، پھر میں نے سوچا شاید ابھی زندگی باقی ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، تو پھر گھڑیال مجھے کیسے کر سکتا تھا؟ اس وقت مجھے ایک عارف کا وہ مقولہ یاد آیا جس کے حق میں ہونے میں کوئی شک نہیں، فرمایا، موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے۔ دلدل۔ میں یہی سوچ رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی دلدلی زمین میں آ پھنسا۔ سچ مچ میں دلدل میں تھا اور میرے پیر پنڈلیوں تک اس کے اندر۔ اب تو میں گھبرایا۔ وہی بات ہوئی جو کسی نے کہی ہے، ایک آفت سے تو مرمر کے ہوا تھا جینا، اور کیسی پڑی سر پر میرے اللہ نہیں۔ میں نے دلدل سے پیر نکالنے کی کوشش کی تو پیر نکلنے کے بدلے گھٹنوں تک دلدل میں چلے گئے۔ اب تو میں پریشان ہونے لگا۔ میں نے اور زور لگایا تو ایک بالش اور اندر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میری پریشانی اور بڑھی، اور بھئی سچ پوچھیے تو تھی بھی پریشان کر دینے والی بات۔ میں دلدل سے نکلنے کے لیے جتنا زور لگا رہا تھا اتنا ہی اندر دھستا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں کمر تک اندر چلا گیا۔ اب میں نے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ، مجھے یہ زمین نگل جا رہی ہے۔ میں پوری طاقت سے چلا رہا تھا۔ دیر تک چلانے کے بعد جب میری کوئی مدد کو نہ آیا تو میں نے یقین کر لیا کہ میری موت گھڑیال کے منہ میں نہیں بلکہ اس دلدل میں تھی۔ اب گھنٹہ آدھ گھنٹہ تو میرا پتہ بھی نہ چلے گا کہ میں کہاں گیا۔ موت کا یقین ہو گیا تو میں نے خدا کو یاد کیا اور کلمہ پڑھنے لگا۔ ابھی میں نے 5-6 بار ہی کلمہ پڑھا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، زور نہ لگاؤ، زور نہ لگاؤ، ایک طرف جھک جاؤ۔ میں اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا 17-18 سال کی ایک لڑکی شیر کی کھال پہنے، ایک موٹا سا رسا کاندھے پر ڈالے ندی کی طرف دوڑی چلی آ رہی تھی اور پکار رہی تھی، زور نہ لگاؤ، زور نہ لگاؤ۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہو گیا اور ایک پیڑ کے پاس
आकर रुकी, वह एक पेड़ के पास आकर रुकी। उसने रस्से का एक सिरा पेड़ से बांधा और दूसरा सिरा मेरी तरफ फेंका। रस्से का दूसरा सिरा ठीक मेरे ऊपर आ गिरा। मैंने पकड़ लिया। शाबाश जवान, छोड़ना नहीं, देखो मैं तुम्हें खींचती हूँ। ये कहकर उसने जोर लगाया, लेकिन मैं फंसा का फंसा रहा। उसने और जोर लगाया, मैं अब भी ऊपर ना आ सका। इसने और ज्यादा जोर लगाया, अरे भाई, इसने भरपूर जोर लगा दिया। उसका चेहरा तमतमा उठा, लेकिन मैं तो कमर तक दलदल के अंदर था। मुझे खींचने के लिए हाथी की ताकत चाहिए थी। जी हाँ, हाथी की ताकत। वह थक कर चूर हो गई। इसने इधर उधर देखा, लकड़ी का एक लट्ठा पास ही पड़ा था। उसने रस्से को पेड़ से कस दिया, फिर बढ़कर लट्ठा उठा लिया। ये देखकर मैंने दिल में कहा, बड़ी ताकतवर है ये लड़की। लट्ठा उठाकर उसने मुझसे कहा, जवान, रस्सा पकड़कर तुम खुद जोर लगाओ। तो रस्सा पेड़ से बंधा हुआ था। मैंने मजबूती से पकड़ा और जोर लगाया तो कुछ ऊपर आया। ठीक उस वक्त लड़की ने लट्ठा मेरी तरफ फेंका। लट्ठा मेरे पास ही 2-3 हाथ की दूरी पर गिरा और अंदर चला गया। उसके अंदर जाने से मुझे ऐसा लगा जैसे 2-4 अंगुल मैंने अपने आप से ऊपर आ गया। अब मैंने पुकारा, कोई लट्ठा और फेंको, खुदा तुम्हारी मदद करेगी। सुनकर लड़की खुश हो गई, लेकिन मुश्किल ये थी कि आसपास कोई और लट्ठा ना था। उसने कुछ सोचकर फिर रस्सा पकड़ा और मुझे को खींचते हुए बोली, बापू बापू बापू। जंगली लड़की की पूरी ताकत से बापू को पुकार रही थी। उसे पुकारते ज्यादा देर ना हुई थी कि जंगल से एक अधेड़ उम्र का शख्स निकला। वह भी शेर की खाल पहने हुए था। उसके पास बलम और तीर कमान भी थे। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें और घनी दाढ़ी थी। उसने लड़की की तरफ देखा और देखते ही दौड़ पड़ा। लड़की के पास आया। लड़की ने मेरी तरफ इशारा किया और इशारा करते ही रस्सा पकड़कर खींचा। उस आदमी ने भी रस्सा पकड़ा और अब दोनों ने जो मिलकर जोर लगाया तो मैं ऊपर आ गया। फिर दोनों ने अपनी तरफ मुझे खींच लिया। मुझको दलदल से निकाल कर दोनों बहुत खुश हुए। जंगली लड़की तो इतना खुश थी कि जैसे उसने किसी अपने घर के आदमी की जान बचाई हो। खुशी के मारे वह फूली नहीं समा रही थी। उसका बापू 50 के लगभग था। उसने मुझसे कहा, जवान, खुदा ने तुमको बचाया। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस खुदा का शुक्र कैसे अदा करूँ जिसने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेज दिया। ये कहकर उसने लड़की से कुछ कहा और उस तरफ चक्को चल दिया जिधर से आया था। लड़की की मदद से मैंने भी अपने कपड़े कुछ न कुछ इस तरह साफ कर लिए कि पहनकर चल सकता। इसके बाद लड़की ने मुझे लेकर चली। आगे वागे बहती उसके पीछे मैं। धूप अब पीली पड़ चुकी थी। सूरज के डूबने में देर नहीं थी। जंगली लड़की तेज तेज चलने लगी। मैं भी जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा। मेरा दिल बहलाने के लिए लड़की ने मुझसे बातें भी करती जाती थी। बड़ी ही बातूनी थी वह लड़की। जुबान कैंची की तरह चल रही थी। जवान, तुम जंगल में डरते तो नहीं? मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। मेरे बापू ने बताया है कि इंसान बड़े से बड़ा जानवर डरता है। मेरे बापू ने बताया है कि इंसान में बड़ी ताकत है। इंसान शेर को काबू में कर लेता है, हाथी को बस में कर लेता है, बड़े से बड़े अस्तहे को मार सकता है, पानी पर तैर सकता है, पहाड़ों पर चढ़ सकता है। जवान, तुम कभी पहाड़ों पर चढ़े हो? मैं पहाड़ों पर कई बार चढ़ चुकी हूँ। जब भी मैं पहाड़ों पर चढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। इंसान सबसे बड़ा है। मैंने बापू से यही बात कही तो बापू ने बताया, इंसान से बड़ा, बहुत ही बड़ा खुदा है। खुदा? खुदा? ए जवान, मैंने बापू से कई बार कहा खुदा कहाँ है, लेकिन अफसोस वह खुदा को नहीं जानता। वो अफसोस वे खुदा को जानते हुए भी मुझे नहीं बताते। जवान, तुमने खुदा को देखा है? बताओ बताओ जवान, तुम ज़रूर जानते होगे। मैं बिल्कुल खामोशी से उसके साथ चल रहा था। सूरज अब नज़र नहीं आ रहा था। पश्चिम की तरफ लाली छाई हुई थी। मगरिब के वक्त जंगली लड़की मुझे लेकर अपने घर पहुंची। घर का मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई महल खड़ा था। ये एक झोपड़ा था। कुछ झाड़ियों को छाँट छाँट कर, तराश तराश कर कोठड़ी सी बना ली गई थी। उसके सामने ज़मीन साफ कर ली थी और इसके चारों तरफ जिस तरह बाड़ा बना लिया जाता है, इस तरह लकड़ियों की को खड़ा करके आपस में बांध दिया था। बस ये था इनका घर। उसका बापू पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। उसने हमें अपने हाथ लिया। मैंने जाते ही कहा, मेरे मददगार दोस्तों, मैं नमाज पढ़ूंगा। नमाज? नमाज किसे कहते हैं? हम नहीं समझे। जवान, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मुझे पानी चाहिए। लड़की ने मुझे पानी दे दिया। मैंने वज़ू किया, नमाज पढ़ने लगा तो दोनों बड़े ताज्जुब के साथ मुझे देखने लगे।
जब मैं नमाज पढ़ चुका तो दोनों ने एक साथ मुझसे कहा, जवान तुमने ये क्या किया? मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। तुमने खुदा का शुक्र अदा किया? तुमने खुदा का शुक्र अदा किया? यही तो मैं जानना चाहता था। जंगल का वह आदमी जो तन्हा वहाँ रह रहा था कई जुमले बोल गया और जवाब सुनने के लिए बेचैन होने लगा। बताओ जवान, बापू यही तो दिन रात सोचते रहते हैं, जंगली लड़की मुझसे कह रही थी। और देखो, तुम ये भी बताना कि खुदा कहाँ मिलेगा। मैं जानती हूँ जवान, तुमको सब मालूम है। देखो लल्ली, ठहरो, जवान भूखा होगा, इसे पहले खाना खिलाओ, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, उसके बाद इस जवान से बातें करें। ये जवान जानता ज़रूर है, ये हमें ज़रूर बताएगा। लेकिन जवान, मुझे ऐसा लगता है तुम इस देश के वासी नहीं हो। लल्ली से कहते कहते आदमी ने मुझसे कहा और मैंने इकरार किया कि मैं अरब का रहने वाला हूँ। लल्ली एक डलिया में जंगली फल ले आई। ज़मीन पर उसने चटाई बिछा दी थी। हम सब उस चटाई पर बैठ गए। किसी जानवर की खाल बिछाकर लड़की ने फल उस पर चुन दिए। फिर चांद की रोशनी में हम सब ने फल खाए। मैं फल खाता जाता और सोचता जाता, ये दोनों कौन है, जंगल में क्यों रहे हैं। वे दोनों बार बार मेरा चेहरा देखते हुए मुझसे कुछ कहना चाहते थे, मगर उस वक्त तक चुप रहे जब तक खाना खाते रहे। खाकर उठे तो उससे पहले कि वे मुझसे पूछे, मैंने उनसे कहा, पहले आप बताएं, आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्यों बस गए। ये सुनकर लड़की का बापू मुंह तकने लगा। पहले मैं बताऊं, पहले मैं बताऊं, बापू ने 2 बार कहा। उसके बाद बोला, अच्छा लो, पहले मेरी कहानी सुन लो। अब से 20 बरस पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 25-30 साल के बीच थी। मैं बचपन ही से देखा करता था कि लोग बुतों को पूजते हैं, उन पर चढ़ावे चढ़ाते हैं और उनसे मुरादें मांगते हैं। सोचा करता कि ये बुत जो पत्थर के हैं, ये खुद बेबस है, इंसान इन्हें खुद कर लेता है, फिर उसको क्यों पूछता है। यही बात मैंने अपने बाप से कही। बाप मुझ पर बहुत खफा हुआ। खफा होकर बोला, अगर ऐसी बातें करोगे तो तुमको घर से निकाल दूंगा। मेरा बाप जो है वो बुतों को बनाता था और बेचता था, और वह और भी नाराज़ हुआ। लेकिन मैं बराबर यही सोचता था। फिर मैं ज़रा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि लोग तरह तरह के रिवाजों में फंसे हैं। शादी ब्याह के मौक़ों पर अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते हैं और बड़ी बड़ी रकमें फजूल कामों में उड़ा देते हैं। फिर चोरियाँ करते हैं, डाके डालते हैं, जुआ खेलते हैं, सूद खाते हैं, आपस में लड़ते हैं और औरतों की बेइज्जती करते हैं। मैंने लोगों से कहा कि ये बातें बुरी हैं, उन्हें छोड़ दो। मेरा ख्याल था कि बुरी बातों पर टोकूंगा तो लोग मेरी तरफदार हो जाएंगे, मगर उन पर उल्टा असर हुआ। लोग उल्टे मुझसे नाराज़ हो गए। जब मैं जवान हुआ तो बाप ने मेरी शादी कर दी। लोगों ने बताया था कि शादी कर दो तो लड़का आपसे आप ठीक हो जाएगा, मगर शादी के बाद भी इस तरह सोचा करता। मैंने यही बातें बीवी के सामने रखी। मेरी बीवी भी मेरी तरह सोचने लगी। इस तरह कई बरस हो गए। ये लल्ली पैदा हुई तो ना जाने कैसी बुरी बुरी रस्में घर में होने लगी। मैंने सारी रस्में रोक दी तो मोहल्ले टोले के लोग बहुत बिगड़े। मैं जवान तो था, मैंने किसी की परवाह नहीं की। फिर जब मेरे बाप ने मुझे डांटा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने रात के वक्त घर की सब को तोड़ करके मैंने रात के वक्त सब पुतों को तोड़ करके और सुबह को लोगों ने देखा तो समझ गए कि ये काम मेरा है। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि तुम इन्हीं से पूछ लो। मैंने ज़रा ज़ोर देकर कहा, ये बेबस हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ, हम खुदा को किस तरह पूजें। मुझसे सबने पूछा। जवान, तुमसे सच कहूँ, ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी। मैंने बुराई को तो पहचान लिया, लेकिन खुदा के बारे में कुछ ना बता सका। तो लोगों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरी बीवी इस वक्त लल्ली को लिए लेटी हुई थी। उसने सुना तो दौड़ती हुई आई, मुझे बचाने लगी। लोग उसे भी मारने लगे। अब तो मुझसे रहा ना गया। मैंने भी लात घूंसे चलाए, मगर मैं अकेला कर ही क्या सकता था। लल्ली की माँ के चोटें ज़्यादा आ गई, वे बेहोश हो गई। मैंने उसे बेहोश देखकर हाथ रोका और उसकी तरफ लपका। लोगों ने फिर मारपीट बंद कर दी। वह सब अपने अपने घर चले गए। मैंने बीवी को उठाया, उसमें दम नहीं था, वह मर चुकी थी। मैं उसे उठाकर घर ले गया तो मेरे बाप ने घर में आने ना दिया। मेरी इस लल्ली को मेरी गोद में देकर कहा, अब इस घर में कदम मत रखना, अपने इस खुदा के पास जाओ जिसे तुम पहचानते भी नहीं। जवान, सच जानो, मुझे बहुत पीटा गया था, लेकिन इस मारपीट से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख बाप की इस बात से हुआ। मैं अपनी बीवी की लाश लिए और लल्ली को कंधे से लगाए घर से चल दिया। बस्ती भर में किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने एक साफ गड्ढे में बीवी की लाश रख दी, ऊपर से कुछ लट्ठे रख दिए और झाड़ियाँ लाकर उसे बंद कर दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। मेरी समझ में उस वक्त यही आया। फिर मैं लल्ली को लिए हुए गाँव गाँव घूमा फिरा। मैं जहाँ गया लोगों ने मुझे सताया। हर जगह मुझसे यही पूछा गया कि तब तुम
ان رسموں کے سے روکتے ہو تو پھر بتاؤ خدا کو کس طریقے سے خدا کی عبادت کریں؟ جوان میں اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ میں بہت دنوں یہ سوچتا رہا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں پریشان ہو کر میں نے بستیوں میں رہنا چھوڑ دیا۔ اس جنگل میں بسا میں ہر وقت یہی سوچتا ہوں، اور جب میں نے تم کو دیکھا تو نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ تم وہ بات جانتے ہو جو میں نہیں جانتا۔ مجھے اس جنگل میں 15-16 سال ہو گئے۔ یہ کہہ کر باپو خاموش ہو گیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ للی بھی مجھے تک رہی تھی۔ میں نے کہا، باپو میں تم کو بتاؤں گا، شاید خدا نے اس لیے مجھے یہاں بھیج دیا، تم خدا کا شکر ادا کرو۔ جوان، میں تو یہی پوچھتا ہوں کہ خدا کا شکر کیسے ادا کروں؟ باپو نے جھٹ پوچھا۔ میں نے کہنا شروع کیا، باپو سنو، بالکل ایسے ہی کہ لوگ جیسے تم نے اپنی بستی میں دیکھے، عرب میں بھی تھے، اس وقت بھی تمہارے جیسے کچھ لوگ موجود تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے ہوا بنائی، پانی برسایا، ہمارے لیے طرح طرح کے پھل پھلاڑی اور اناج پیدا کیے، جس نے ہمیں جانور دی، ان جانور سے ہم کام لیتے ہیں، اس خدا کو وہ نہیں پہچانتے تھے، ہے نا ٹھیک بات؟ ہاں جوان، بالکل ٹھیک، یہی میں بھی سوچتا ہوں۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ خدا نے مکہ شہر میں ایک شخص کو پیدا کیا، وہ بچپن سے بڑا نیک سچا اور آدمی تھا، اس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا نے اپنا فرشتہ بھی بھیجا، خدا نے ان پر اپنی کتاب اتاری۔ جوان، سچ مچ؟ میں آپ سے بالکل سچ کہتا ہوں، اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ خدا کی عبادت کیسے کریں اور کون سے کام کریں کہ وہ پیدا کرنے والا خوش ہو جائے۔ ہاں اے جوان، بس یہی بتاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بتایا کہ نماز پڑھو۔ تم نے دیکھا باپو، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز ہی تو پڑھی ہے۔ میں نے نماز میں خدا سے کہا، اے خدا، تو ہی ہم سب کا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ جوان، سنو، میں بھی یہی چاہتا ہوں باپو، ہر سمجھدار آدمی یہی چاہتا ہے۔ اچھا تو پھر سمجھدار آدمیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، برے لوگوں نے نہیں مانا اور جھگڑے کرنے لگے۔ اف خدا، برے آدمی سچ مچ برے ہوتے ہیں، خدا ان سے بچائے۔ ہاں باپو، تو پھر برے آدمیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، انہیں بھی ستایا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں جوان؟ باپو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو خدا کو مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مانے کہ انہوں نے جو کچھ کہا خدا کی طرف سے کہا۔ اچھا تو سنو جوان، میرا دل کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں خدا ہی کی طرف سے کہیں تو کیا میں مسلمان ہوا؟ بے شک، اور میں بھی مسلمان ہوئی جوان، میں بھی تو یہی سمجھتی ہوں۔ ہاں للی، تم بھی مسلمان ہوئی، اور دیکھو کیسی اچھی بات بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ سب کو پھر زندہ کرے گا، سب کے کاموں کی جانچ کرے گا، جس سے خوش ہوگا اسے جنت دے گا، برے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے گا، پورا بدلہ ملے گا سب کو۔ جوان، مجھے بھی بدلہ ملے گا نا؟ بے شک آپ کو اچھا بدلہ ملے گا۔ واہ، کیسی سچی بات کہی تم نے جوان، اس دنیا میں تو اچھوں کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اچھا ہاں، اب یہ بتاؤ، جس کتاب کے بارے میں تم نے بتایا کہ خدا نے اسے اتارا، وہ کہاں ہے؟ وہ کتاب میرے دل میں ہے باپو، یعنی تم کو یاد ہے سب؟ ہاں باپو۔ اچھا تو سناؤ۔ میں نے باپو کو جگہ جگہ سے قرآن سنایا اور اس کا مطلب سمجھایا۔ باپو اور للی دونوں بہت خوش ہوئے، وہ روز مجھ سے قرآن سنتے، جو سنتے اس پر عمل کرتے۔ اس طرح ہم تینوں جنگل میں رہتے رہے۔ ایک دن میں نے کہا، باپو یہاں جنگل میں کب تک پڑے رہو گے؟ آؤ چلیں بستی بستی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات لوگوں کو بتائیں۔ نہ جوان، مت جاؤ، برے لوگ ستائیں گے۔ باپو ایک بات اور بتاؤ، لوگوں کے ستانے سے مت گھبراؤ، اگر اس کام میں مار بھی ڈالے جائے تو یہ سودا سستا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ پوچھنے میں نے قرآن کی وہ آیتیں سنائی اور سمجھائی جس میں شہیدوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ ہے ایسے لوگ بے حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ خوشخبری سننا تھی کہ باپو بہت خوش ہوا، للی بھی خوش ہو گئے، اور ہم سب جنگل سے بستی کی طرف جانے کے لیے ایک سامان تیار کرنے لگے۔ پھر ایک دن باپو نے مجھے اور للی کو ساتھ لیا، راستہ وہ جانتا تھا، سب کو لے کر ایک طرف چل دیے۔ باپو کے ساتھ ہم دونوں دن بھر چلتے رہے، شام کو ایک جگہ ٹھہرے۔ باپو نے بتایا کہ اللہ نے چاہا تو ہم کل صبح کے وقت جنگل پار کر لیں گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا، للی بھی خوش ہوئی۔ صبح ہوئی تو پھر چلے۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص کو بے ہوش پڑا دیکھا۔ ہم جھٹ اس کے پاس گئے، ہم نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اس کے ہونٹوں پر پانی ٹپکایا
कुछ देर बाद उसने मुंह खोल दिया। हमने उसे पानी पिलाया, उसने आंखें खोल दी। हम देखने लगे। फिर हमने उसे सहारा देकर बिठाया। मैंने कहा, शायद आप भूखे प्यासे हैं। वह कुछ ना बोला। लल्ली ने झट अपनी डलिया से कुछ फल निकाले, इनसे काटा, उस आदमी को खिलाया। हम सब ने भी खाया। कुछ खा पी कर वह शख्स मुस्कुराया। अब हमने इसका हाल पूछा तो अपनी कथा सुनाने लगा। ए आने वालों, मैं इस देश का राजा हूँ। परसों मैं अपने लाओ लश्कर को लेकर इस जंगल में शिकार खेलने आया था। मैंने एक जगह देखा, एक अपाहिज लोमड़ी पड़ी थी। वह गहरे गड्ढे में थी और उससे किसी तरह भी नहीं निकल सकती थी। ये देखकर अचानक मेरे दिल में ये बात आई, इस गड्ढे में इसे खाना कहाँ से मिल सकेगा। मैं यही सोचता हुआ आगे बढ़ गया। एक ऊंची जगह बैठ गया। मेरी नज़र गड्ढे पर रही। मैंने देखा कि थोड़ी देर में जंगल से एक शेर निकला। इसके मुंह में एक हिरन दबा हुआ था। शेर ने एक जगह हिरन को खाना शुरू किया। जब इसका पेट भर गया तो उसने बाकी हिस्सा उठाकर फेंक दिया। वह गिरा जाकर लोमड़ी के गड्ढे में। ये देखकर मैंने सोचा, खुदा सबको रोजी देने वाला है। वह राजा को भी देता है, जो दिन रात राजकाज के चक्कर में जान खपाता है, दुश्मनों से लड़ता, हर वक्त एक खटके में रहता है, और मजबूर लाचार लोगों को भी खुदा ही रोजी पहुंचाता है। आखिर उसने इस लोमड़ी को रोजी पहुंचा दी। मैंने यही बात अपने लश्कर के लोगों से कही। इसके बाद मैंने कहा, जब ये बात ठीक है तो फिर दुनिया के झंझटों और ज़िंदगी के झमेलों में फंसने से क्या फ़ायदा। क्यों ना चुपके से एक कोने में बैठ जाऊं, खुदा तो रोज़ी पहुंचाने वाला है ही। तो ए आने वाले भाइयों, मैंने लश्करियों से कहा, तुम सब जाओ, अब मैं यही जंगल में रहूँगा। अब मैंने राजकाज के झगड़ों में जान नहीं खपाऊंगा। लोग मुझे समझाने लगे, मैं नहीं माना, सबको वापस कर दिया। अकेला इस पेड़ के नीचे बैठ गया और खुदा को याद करने लगा। शाम हो गई लेकिन खुदा ने मेरे लिए रोज़ी नहीं भेजी। मैंने सोचा, शायद खुदा मेरा इम्तिहान ले रहा है। मैं भूखा ही पड़ा रहा। सुबह को मुझे बड़ी भूख लगी थी। मेरा ख्याल था कि आज सारी दुनिया का खुदा रोज़ी ज़रूर भेजेगा। कल का दिन भी बीत गया। तो तुम जानो, मैं राजा आदमी, मैं भूख को क्या जानूँ। अब जो भूख लगी तो मैं परेशान होने लगा, लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि खुदा ज़रूर रोज़ी भेजेगा। वह मेरा इम्तिहान ले रहा है। आखिर आज जब मैं भूख के मारे बेहोश हो गया तो खुदा ने तुमको भेज दिया और इस तरह मेरी रोज़ी मुझे मिल गई। कितनी ठीक है मेरी बात। तो फिर मैं ज़िंदगी के झमेलों में क्यों फंसूं। क्यों भाइयों, मैंने ठीक कहा ना। राजा ने बात ख़त्म करते करते हमसे पूछा तो जल्दी ने झट बोल पड़ी, बिल्कुल गलत किया आपने राजा साहब। वह कैसे। राजा लल्ली की तरफ देखने लगा। हम सब लोग भी लल्ली की तरफ देखने लगे। देखे लल्ली इसकी बात का क्या जवाब देती है। लल्ली ने कहा, राजा होकर आपने ये बात, आपसे ये ना हुआ कि शेर की तरह ज़िंदगी बसर करते। जिस तरह शेर ने शिकार करके लोमड़ी तरह तक खाना पहुंचाया, इसी तरह दूसरों को खाना खिलाते उल्टे लोमड़ी बन गए। अपाहिज लोमड़ी दूसरों की कमाई की तरफ देखने लगे। अरे, हम सब लल्ली की बात पे चौंक पड़े। मैं ये सोच रहा था कि लल्ली ने बात तो जची तुली और बिल्कुल ठीक कही, लेकिन ज़रा तीखेपन से कही। मैं राजा को देखने लगा। राजा लल्ली को देख रहा था। वह देर तक देखता रहा। हम सब चुप थे। कुछ देर बाद राजा ने सर झुका लिया, कुछ सोचकर बोला, लड़की, तूने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें शक नहीं कि रोज़ी तो मिलेगी ही, लेकिन हमसे जहाँ तक हो सके दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, ना कि लोमड़ी की तरह अपाहिज होकर रह जाए। लल्ली कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे रोक दिया। मैंने सोचा, लल्ली अक्खड़ है, फिर जंगली भी, ना जाने क्या कह दे। मेरा इशारा पाकर वह खामोश है। अब मैंने कहा, राजा साहब, खुदा ने हमें इंसानों के अंदर पैदा किया। हमें इंसानों के साथ ही रहना चाहिए, उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। यही इंसानियत है। ये ठीक नहीं कि दुनिया को छोड़ दें, सबसे अलग थलग रहें। हमें दुनिया में रहकर दीन का काम करते रहना चाहिए। अल्लाह इस तरह खुश होगा। राजा मेरी बात सुनकर बोला, ए जवान, तुमने ये क्या बात कही। दुनिया में रहकर हम किस तरह खुदा को खुश कर सकते हैं, जबकि ज़िंदगी में ना जाने कितनी रुकावटें हमारे सामने आती हैं। कभी कभी हमारा पापी मन हमसे कहता है कि हम दूसरे का माल छीन लें। कभी ऐसा होता है कि लोगों के कहने सुनने से दूसरों को सताना पड़ता है। फिर लड़ाइयाँ छिड़ती है तो फिर हमारा ये पापी मन सबसे पहले हमें बुराइयों पर उभारता है। फिर दुनिया के बुरे लोग हैं, इनकी वजह से हमसे बुराइयाँ हो जाती हैं। राजा साहब, मर्द का काम यही है, हर उस ताकत को ठुकरा दे जो बुराई की तरफ ले जाने वाली हो। मैंने ये कहा तो लल्ली बोल पड़ी, जवान, तुमने तो हमें ये बताया था कि ये काम तो मुसलमान का है। अगर मुसलमान अपने पापी मन का कहना ना माने, बुरों का कहना ना माने, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर चले, तो अल्लाह उसे जन्नत देगा। तो ये मुसलमान ही कर सकता है।
लली, तुम ठीक कहती हो, लेकिन राजा साहब मुसलमान तो है नहीं, इसलिए मैंने राजा साहब को इस तरह समझाया। राजा ने मेरी और लली की बात बड़ी ध्यान से सुनी, फिर बोला, ये मुसलमान की बात कैसी, बताओ तो मुसलमान क्या करता और कैसे करता। राजा ये ने पूछा तो मैंने जिस तरह जंगल में बापू को इस्लाम के बारे में समझाया था, इस तरह राजा से कहा। बात सच्ची और साफ थी, पूरी बात राजा की समझ में आ गई और वह भी मुसलमान हो गया, और इसके मुसलमान होने से हम सब बहुत खुश हुए। इसके बाद राजा उठा, उसने हम सब से कहा, आप लोग मेरे साथ राजधानी चले और यही बात सबको समझाए। राजा की बात सुनकर मैं खुश हुआ, मुझसे ज़्यादा बापू खुश हो गया। उसने कहा, राजा को खुदा अच्छे कामों की तौफीक दे, हम ज़रूर राजधानी चलेंगे, अल्लाह के दीन को फैलाएंगे। अल्लाह अगर हमने ऐसा कर लिया तो अल्लाह हमें अपनी रज़ा के घर यानी जन्नत में दाखिल करेगा। राजा हमें लेकर राजधानी की तरफ चला। रास्ते में उसने हमसे कहा, राजधानी यहाँ से दूर है, ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग अपना अपना हाल कहते चले, रास्ता आसानी से कटेगा। मैंने अपना हाल बताया कि मैं एक अरब सयाह हूँ, दुनिया की सैर करने निकला हूँ, घूमता फिरता इस जंगल में निकला। मैं अपने सफ़र के बहुत से हालात राजा को सुनाए। राजा बहुत खुश हुआ। फिर बापू ने अपनी आप बीती सुनाई। राजा बापू की आप बीती सुनकर बहुत खुश हुआ। बापू, खुदा तुमको उसका अच्छा बदला दे। और मुझे लल्ली अचानक बोल पड़ी। हम सब हंसने लगे। तुम्हें भी, राजा ने कहा। इस तरह चलते चलते हम राजधानी पहुँचे। वहाँ लोगों को ये मालूम हुआ कि राजा वापस आ गया तो सब बहुत खुश हुए, हाथों हाथ सबको लिया। राजा हम सबको लेकर महल में चला गया। इसने हम सब के लिए अलग अलग कमरे दिए, हर कमरे में ज़रूरत का सामान भेज दिया, हमारी खिदमत के लिए नौकर चाकर मुकर्रर कर दिए। राजा दिन भर तो राज के कामों में फंसा रहता, रात को 2-3 घंटे हमारे पास गुजारता। मैंने राजा के साथ कुछ दिनों इसकी राजधानी में रहा। राजा ने समझा बुझाकर बहुत से लोगों को मुसलमान बना लिया, लेकिन इसका वज़ीर उसका दुश्मन हो गया। वह राजा से नाराज़ होकर दूसरे राज्य में चला गया और वहाँ के राजा को उकसाया कि मुसलमान होने वाले राजा पर चढ़ाई कर दे। फिर वह उसे एक बड़े लाव लश्कर के साथ चढ़ा लाया। राजा ने अपनी फ़ौज को साथ लिया और मैं भी इस लश्कर के साथ था। बापू भी साथ था, लल्ली भी बल्लम लिए साथ थी। राजधानी के बाहर बड़ी घमासान का रण पड़ा। राजा बड़ी बहादुरी से लड़ा। बापू को शहादत का शौक था, वह तो बड़ी बेजिगरी से लड़ा। लल्ली भी तड़प तड़प कर लड़ रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि दुश्मन के सिपाहियों ने पीछे से राजा पर हमला कर दिया। दुश्मन का एक सिपाही राजा के बिल्कुल पीछे आ गया। वह पीछे से हमला करना ही चाहता था कि लल्ली ने देख लिया। वह झपट कर आई, इसने बल्लम दुश्मन के सिपाही के पीठ पर भोंक दिया। राजा ने मुड़कर देखा, लल्ली खड़ी मुस्कुरा रही थी। राजा बहुत खुश हुआ, इन्हें लल्ली की पीठ ठोकी, फिर बढ़कर लड़ने लगा। शाम तक लड़ाई होती रही। शाम को दुश्मन हार कर भाग गए। इस लड़ाई में मुसलमान राजा की जीत तो हुई, लेकिन हमारा बापू किसी बल्लम से शहीद हो गया। बापू की शहादत का हमें बड़ा अफसोस हुआ, मगर लल्ली ने समझाया, जवान, इसमें अफसोस की क्या बात है, बापू तो शहीद हुए, अब वे बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, यही तो वे चाहते थे। तो आओ जवान, अल्लाह से दुआ करें। हम सब ने बापू के लिए दुआ की। उसके बाद तीसरे दिन राजा ने मुझसे राय लेकर लल्ली से शादी कर ली। मैं बहुत खुश हुआ। मैं कुछ दिन और राजा के यहाँ रहा। उसके बाद जैसे कि मेरी आदत थी, सैर को निकल खड़ा हुआ। राजा और लल्ली दोनों दूर तक मेरे साथ आए, फिर लौट गए। मैंने उनके लिए दुआ की, खुदा उन्हें इस्लाम पर कायम और खुश व खुर्रम रखे, आमीन।